I welcome you all, dear students. Myself, Dr. Roli Rai from the Department of Education, BBD University, Lucknow. In this paper of mine, that is Philosophical Foundations of Education, we shall be studying now the Unit 4, which is introducing the Introduction to Western School of Philosophy and its contribution to Western educational thoughts. We shall be doing different various philosophies relating to the philosophers. So there will be a basic introduction that I shall be giving to Western School of Philosophy. The various philosophies related to the Western School of Thought, और उनमें मानने वाले शिक्षा शास्त्री जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, जो कि हैं प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो, जॉन ड्यूई and Pestalozzi. So there shall be different philosophies and philosophers that we shall be discussing in this unit 4 of ours. हमारा माध्यम जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में रहेगा, and I hope you shall feel comfortable in the class. So, dear students, I welcome you for my class today. Hope you shall enjoy. What we plan to do in this session is basically understand the concepts regarding philosophies कि educational philosophy के तहत different philosophies में क्या कहा गया है, भिन्न प्रकार के दर्शन जिनको बारे में बताया गया है, जो पाश्चात्य दर्शन है. हमने previous unit में unit 1 में ये पढ़ाया था मैंने कि कैसे philosophy क्या होती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, और आज हम इन वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ स्कूल ऑफ थॉट के तहत इसमें जो इंट्रोड्यूस किया गया है, वी शैल बी स्टडिंग द कंट्रीब्यूशन दैट हैज बीन मेड बाय वेरियस फिलोसफर्स. So there is a slide share which I have prepared for you, and I hope that you shall enjoy this slide. Okay, so coming to this philosophy, Introduction to Western School of Philosophy, I would like to now tell you what is this Introduction to Western School of Philosophy. हम इस philosophy के तहत कई सारे aspects में हम आते हैं, और इसको हम ये बात कह सकते हैं कि क्या ये school of thought जो फिलॉसफी से रिलेट करता है उसके पर्टेनिंग हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे. व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन दैट वी शैल बी होल्डिंग आवरसेल्व्स टू. ईस्टर्न फिलॉसफी हो या वेस्टर्न फिलॉसफी हो, किसी के भी तहत आप ये नहीं कह सकते कि वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छी है, या उसके क्या मायने हैं. सिर्फ अंतर इतना है कि कई जगहों पे ये जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी की इम्पोर्टेंस बताई गई है, इसमें हम डील करते हैं कई सारी फिलॉसफीज जो इंडियन फिलॉसफी के तहत भी आती हैं, किंतु इनमें अंतर ये है कि ये जो पाश्चात्य फिलॉसफर्स हुए हैं, इन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस या महत्ता किस प्रकार से दी है. सो व्हाट डज इट रिलेट टू, हाउ इट रिलेट्स टू those various philosophies, those interactions with different philosophies, and we shall be discussing the philosophy of idealism, naturalism, pragmatism, realism and humanism. तो ये जो philosophy हमारी deal करती है, ये बताती है idealism deals with ideas, thoughts, it deals with what is comes to our mind, हमारे मस्तिष्क में जो हमारी thoughts, जो प्रक्रिया आती है, जो ideas हैं, उनको बारे में हम डील करेंगे. नेचुरलिज्म डील करता है प्रकृति से, प्रकृतिवाद की बात करता है. ये जो कुछ महत्व रखता है वो प्रकृति है, प्रकृति के अन्यथा और कुछ भी नहीं है. इट कम्स रिलेटिंग टू प्रैग्मेटिज्म, दैट इज प्रयोजनवाद जिसे हम कहते हैं. प्रयोजनवाद क्या है? जो कुछ उपयोगिता से संबंधित है, जो कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, जिसमें चेंजेस लाते हैं, जो चेंजेस अकर करते हैं. Realism deals with all that is real, all that is existing, all that is visible by the naked eye. जो कुछ हमारे
आईज में हम देख सकने की क्षमता रखते हैं, जिसके पर्टेनिंग हम बात करते हैं, उसको रियलिज्म का दर्जा दिया गया है। देन ह्यूमनिज्म यानी कि मानववाद। मानवतावाद की बात अगर हम करें तो वी कम टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेटिंग टू फिलोसफी। Now, philosophy of idealism in education की बात है तो idealism contends that material and physical universe known to science is an incomplete expression of reality, that it exists but to subserve and requires to compete it a higher type of reality, a spiritual universe. Now, ये जो इस बात पे हम लोग करते हैं, that simply means कि ये ideas, reality, thoughts of higher spirituality को importance देना, उसमें existence की बात करना, ये इसको मानने वाले जो western philosophers हुए हैं, because see our topic is relating the and giving a brief introduction to the western school of philosophers relating to different philosophers such as Plato, Aristotle we'll be studying about, and इसमें Indian philosophers भी हुए हैं, मगर हम डील करेंगे प्लेटो से, अरिस्टोटल से, रूसो से, you can say John Dewey, Pestalozzi, which belong to different school of philosophies at their own levels. So we come to the point of idealism, which is, according to idealism, a man is born free, man with a spiritual self. He understands its true nature only through education. मानव का जो वास्तविक प्रकृति है, उस प्रकृति को समझने के लिए वो मानव अपने आप में समर्थ है, यदि वो समझ सकता है प्रकृति का, मनुष्य की प्रकृति, नेचर, और उस प्रकृति को समझने के लिए, उस एहसास के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी प्रकृति को समझे. So idealist believes that it is only through the agency of education, the ideals of race and its cultural patterns which are preserved, transmitted and modified subsequently in light of the new situation. यदि idealist का मानना यह है कि यदि जो एजेंसी ऑफ एजुकेशन है वो आइडियल्स को लाती है, रेस को लाती है एंड कल्चरल पैटर्न में बदलाव लाती है, प्रिजर्व करती है, सो दैट इज ट्रांसमिटिंग एंड मॉडिफाइंग सब्सिक्वेंटली इन लाइट ऑफ द न्यू सिचुएशन. नई सिचुएशन के अनुसार नए तरीके से बदलाव लाने में समर्थ होती है. Then we come to the basic principles, that is ultimate reality is mind and spirit, ideas are final, believes in the God and spiritual values, that is ईश्वर और ईश्वर की होने में विश्वास रखना, आध्यात्म में विश्वास रखना, स्पिरिट में इंपॉर्टेंस रखना, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं वो महत्व रखते हों, जो आइडियाज हैं आते हैं वो उनकी महत्ता को समझना. सो वैल्यूज इनके अनुसार प्री डिटर्मिन्ड होती हैं, दे आर एब्सोल्यूट इन नेचर, दे आर अनचेंजिंग, दे नेवर चेंज, दे गो ऑन वेरिंग फ्रॉम वन टू अनदर. और जो फेथ होता है वो वैल्यूज में इटर्नल होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता. जो चीज कल इंपॉर्टेंट थी, जैसे अगर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कल कहा गया तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी एंड ऑनेस्टी विल बी द बेस्ट पॉलिसी. इस तरह से मानना जब विचारधारा को रखते हैं तो उसको संपर्क में बिलीफ के लाते हैं, दैट इज अ प्रायोरी नॉलेज जो पहले से प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है. और ट्रुथ जो है वो सब्जेक्टिव है. नॉलेज एंड ट्रुथ आर डिफरेंट. ज्ञान क्या है और सत्य क्या है, दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग हैं. Whatever is relating to different aspects of education. Now, principles of education relate to stress on spiritual environment. Education is based on spiritualism. Self-realization is the aim of education and emphasizes the mental capacities. तो जो टीचर है, जो करिकुलम है, and they are the central aspects of education, and the teacher और करिकुलम दोनों को महत्व दिया गया है, दोनों की महत्ता मानी गई है, दोनों को इम्पोर्टेंस दी गई है और मेंटल कैपेसिटीज को एम्फसाइज किया गया है. So the self-realization is the aim of education, as you can understand. Now it says ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये किस प्रकार से आप इसमें बदलाव लाएंगे या एजुकेशन को चेंजेस अकर करेंगे. सो द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड you can say is relating to a person's
behavior pattern. दैट इज ये जो बदलाव आ रहे हैं ये एम्फेसाइज करते हैं कि किस प्रकार से अकॉर्डिंग टू द एम्फेसाइजिंग अबाउट द बुक लर्निंग, और किताबों पे ज्यादा महत्व दिया, और आइडियलिज्म की फिलॉसफी में मानने के लिए उन्होंने कहा किताबें इंपॉर्टेंट हैं, रटना जरूरी है। ये आइडियलिज्म की फिलॉसफी कहती है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी, समाज और व्यक्ति दोनों की महत्ता है, दोनों की इंपॉर्टेंस है। Both require definite and specific ideology which should be maintained. So definite and specific ideology is maintained and the stress on disciplining the child is required, as they say. तो इन बदलावों के तहत बहुत सारे चेंजेस अकर करते हैं, और ये चेंजेस परिवर्तन लाते हैं मनुष्य के व्यवहार में। और ये जो इनका एम है, उद्देश्य है शिक्षा का, वो था सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। इन्होंने रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ की बात करी है। जब तक आप स्वयं रियलाइज नहीं करेंगे, अपने व्यक्तित्व को समझेंगे नहीं, अपने आप को नहीं जानेंगे, आप दूसरे को जानने का प्रयास या ज्ञान को पाने का प्रयास, ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, realization of truth, realization of goodness and beauty is exceptionally important. सत्यम शिवम सुंदरम का कंसेप्ट, ये हम लोग different philosophies के तहत जब पढ़ते हैं तो we realize that it relates to, you can say, different aspects of education thoughts. तो अब आती है बात कि कैसे इनमें बदलाव लाया जाए एंड उनको अकर करा जाए। नाउ ये जो चीजें हैं ये परिवर्तन लाती हैं। एक होली लाइफ की बात करी है, एक पायस लाइफ, एक कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी, एक्सलेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, जो प्रिपरेशन है लाइफ की, जहाँ पे कंजर्वेशन हो, जहाँ प्रमोशन हो, जहाँ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज की बात करी है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी है। इट लीड्स टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव पावर्स। और इसके तहत कहा है कि ये इन्वेंटिव और क्रिएटिव पावर्स जरूरी है। जो आइडियाज की बात हम करेंगे, जब थॉट्स की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही बात हो जाती है कि it should lead a person to different aspects. Then we come to the curriculum according to idealism, that is curriculum developed according to ideas and eternal values. Humanistic subjects are emphasized. For example, main subjects हैं religious studies, spiritual studies, ethics, language, literature, history, fine arts, music, etc. Books are considered as treasure house of the knowledge. According to curriculum, इनका आइडियलिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो करिकुलम इस प्रकार का होना चाहिए कि बुक्स को ट्रेजर हंट समझा जाए, स्पिरिचुअल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाए, लैंग्वेज, लिटरेचर और हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस दे, fine arts and music should be considered as important, and they should lead to an individual to a knowledgeable acceptance. Then we come to the next point, that is methodology of teaching. तो मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग के तहत लर्निंग थ्रू रीडिंग, लेक्चर मेथड, डायलॉग, डिस्कशन, ये जो पढ़ाने के तरीके बताए हैं आइडियलिज्म फिलॉसफी में, उसमें कहा गया, ये वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट ऑफ आइडियलिज्म कहता है कि लर्निंग शुड बी डन थ्रू रीडिंग, लेक्चर मेथड से, डायलॉग फॉर्म में, डिस्कशन फॉर्म में, जहां पे श्रवण यानी कि सुनकर, मनन सोचकर, चिंतन मनन, निधि ध्यान से, जो जिन चीजों को ध्यान करें, कंटेम्पलेशन करें, दैट इज रिलेटिंग टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल थॉट्स एज दे हैव सेड। तो ये सारी चीजें बदलाव लाती हैं। स्टडी ऑफ बुक्स को एनकरेज किया गया है। कहा गया है कि जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो है रिलेटिंग टू लर्निंग बाय हार्ट, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग कहाँ पे कर सकते हैं, पुस्तकों के माध्यम से कंठस्थ करने की बात करी गई है चीजों को। नाउ वी कम टू एम्फेसिस ऑन इनर डिसिप्लिन। इनर डिसिप्लिन क्या है? दैट इज, इनर डिसिप्लिन मीन्स कि जो कुछ आपके अंदर है उस एहसास के साथ अनुशासन को लाना। Discipline comes through moral and religious instruction, restraint on freedom, that is,
आप कह सकते हैं कि जो अंदर से हमारे अंदर जब आवाज आती है और आप स्वयं पर अनुशासन लगाते हैं, स्वयं पर रोकथाम करते हैं और बिना किसी और के कहे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाह्य रूप से एक फोर्सिबली डंडे के जोर पे नहीं, किंतु किस जोर पे, वो अंदर से अनुशासन को स्वयं लागू करते हुए जब हम अनुशासित करते हैं, ऐसी फिलॉसफी का मानना आइडलिज्म के अंतर्गत आता है. So discipline comes through moral and religious instruction and restraint on freedom they have talked about. And they say role of teacher, that is teacher's role is supreme and important. He is spiritual guide for the child and the teacher provides model to be initiated. इनका कहना था कि जो शिक्षा का एक नीति है, शिक्षा का इम्पोर्टेंस है, वो मनुष्य के हिसाब से शिक्षा में बदलाव लाने की आवश्यकता है. So they have talked about relevance of idealism. हम ये क्यों कर रहे हैं? Introduction to different philosophies, Western schools of thought. इसके तहत जो philosophy of idealism है, उसका कहना है, उसका मानना है कि education in the emerging Indian thoughts, it deals with lofty aims of education, preservation of cultural heritage, position of the teacher, self-discipline, emphasis on moral development and integrated curriculum. ये सारी चीजें महत्ता रखती हैं and relevance बताती हैं कि lofty aims of education होने चाहिए. कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात, जब आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, ट्रेडिशंस है, कल्चर है, तो उसको प्रिजर्व करेंगे. और टीचर सबसे अहम भूमिका निभाती है. तो टीचर ऑफ पोजीशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मच मोर इम्पोर्टेंट देन द चाइल्ड हिमसेल्फ. So they talk about self-discipline. अनुशासन कैसा हो? अनुशासन ऐसा हो जिसमें स्वयं पर वो रोकथाम लगाएं, स्वयं पर बदलाव लाएं, स्वयं में परिवर्तन लाएं. So they should talk about the changes that occur in a person's behavioral pattern. Integrated curriculum की बात करी है. Integrated curriculum is one which deals with curriculum of all sorts relating to intermingling of various aspects. फिर क्रिटिसिज्म किया गया है कुछ कि आइडियलिज्म की फिलॉसफी क्यों कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंस नहीं रखती या उसमें क्या कमियां हैं, किनके कारण उसको क्रिटिसाइज किया गया है. सो वी फाइंड दैट द क्रिटिसिज्म इज दैट इट नेग्लेक्ट्स द साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ द चाइल्ड. बच्चे की जो मनोवैज्ञानिक प्रकृति है उससे वो वंचित रखता है. It is more inclined towards spiritualism. बच्चे की प्रकृति को समझने के बजाय वो spiritualism या आध्यात्म की बात करता है. So idealism talks about does not contribute much in the field of method of teaching. Too much importance is given to teacher, whereas the subject and the child is neglected. Science and technology is neglected, and rigid restrictions are done by. They give more importance to book learning, rote learning, memorization. That is unattainable goal. तो ये एक बहुत ही नामुमकिन सी चीज लगती है कि इतनी आइडियोलॉजी की बात करें, कि इतने एम्फसाइज करें कि हाउ इट विल लीड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. सो टू मच ओरिएंटेड टू द पास्ट, यू कैन से. फ्यूचर की तरफ ना देखते हुए, प्रेजेंट में ना देखते हुए ये पास्ट की बात करते हैं. So they talk about some kind of unattainable goals which have very much rigid restrictions, as you can say. So philosophy, when we talk, this was idealism. Now I come to talk about philosophy of naturalism and education. Naturalism is, you can say, metaphysics which considers nature as a whole of reality. It excludes what is supernatural or the other world. जैसा कि हॉकिंग ने कहा है कि प्रकृतिवाद के बारे में कि ये मेटाफिजिक्स की तरह से है जो कि कंसिडर करता है ना. इसके नेचुरलिज्म के तहत जो इसके प्रोपोनेंट्स हुए हैं वेस्टर्न फिलोसोफर्स, वो हैं रूजो, अरिस्टोटल, देन कॉम्टे, देन हर्बर्ट स्पेंसर, बेकन, हक्सले. और इंडियन फिलोसफर्स के तहत हम बात करें तो दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर एंड कॉम्टे. So these are various philosophers that we come to. Now, what does naturalism mean? प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं? प्रकृतिवाद में सबसे पहली एलिमेंट, जैसा कि शब्द बताता है, ये अपने आप में ये शब्द
क्लियर करता है कि ये डील कर रहा है प्रकृति से, नेचर से। यदि कोई चीज इंपॉर्टेंस रखती है तो वो है प्रकृति, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रकृति इंपॉर्टेंस है। सो प्रकृति यहाँ पे दो तरह से लिया जा सकता है, एक है जो प्राकृतिक एटमॉस्फेयर है, दूसरा है कि जो मानव की प्रकृति है और जो नेचर है जो आपको सामने दिखता है। तो द मेन एलिमेंट ऑफ नेचर नेचुरलिज्म इज नेचर, एंड अकॉर्डिंग टू फिलोसफी नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी। जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो वास्तविक सत्य है, वो है प्रकृति। नेचर डजंट बिलीव इन सुपरनैचुरल रियलिटी। नेचुरलिज्म को मानने वाले सुपर नेचुरल को कभी नहीं मानते। जैसे आपने देखा था कि आइडियलिज्म की फिलॉसफी में कहा गया है सुपर नेचुरल एलिमेंट को मानते हैं, बट इसके तहत नहीं मानते हैं। सो देन वी कम टू नो बिलीफ इन स्पिरिचुअलिटी। रूसो इन हिज बुक एमिली एडवाइसेस टू फॉलो नेचर। पुनः प्रकृति की ओर ऐसा नारा रूसो ने लगाया था। ही हैड टॉक्ड अबाउट बैक टू नेचर. This is where we discuss the basic aspects. Then we come to basic principles of education, as you will say, basic principles of naturalism. So nature is the final reality. It believes in matter and importance of the material world. Values are created in terms of specific needs. No whatsoever you can say it relates to any kind of reality in its own self. And it relates to matter and importance of material world, and the values are created in terms of specific needs. No faith is there in जो आइडियलिज्म की फिलॉसफी थी, उसी के रेपरकशन में, उसी के एक जवाब देते हुए नेचुरलिज्म की फिलॉसफी सामने आती है, जिसमें वो आइडियलिज्म की फिलॉसफी को नकार देते हैं और कहते हैं कि मूल्य इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज आर क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नीड्स, नो फेथ इन सोल और स्पिरिट। स्पिरिट या सोल इंपॉर्टेंस नहीं रखती। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटीज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। और इननेट गुडनेस ऑफ चिल्ड्रन में विश्वास किया है कि बच्चे प्रारंभ से अपने आप में ही अच्छे होते हैं, और जब वो प्रकृति के संपर्क में जब तक रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, और मनुष्य जैसे ही संसार के लोगों के बीच में संपर्क में आता है, वी टर्न्स evil. So that is what he talks about. Nationalism की philosophy में कहा गया है, development of human personality is due to the interaction of heredity and environment. So they talk about the innate goodness of children. That is, everything natural is beautiful and valuable. Superiority of empirical knowledge. That is, empirical knowledge is superior to them. And they talk about the different aspects of education. Then the principles of education according to naturalism states that the stress on physical environment is there. प्रकृतिवाद को मानने वाले सबसे ज्यादा महत्व फिजिकल एनवायरनमेंट को देते हैं, जो उनके चारों ओर का वातावरण है। प्रकृति कैसी है, किस प्रकार की प्रकृति है। So education is based on psychology and ethics. Self-expression is the aim of education. जो उद्देश्य है, जो एम है, दैट इज सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप एक्सप्रेस करने का नजरिया, तरीका, आदत, और ये एम्फसाइज करता है बेसिक इंस्टिंक्ट को, इंटरेस्ट को और टेंडेंसीज को. दैट इज व्हाट इट रिलेट्स टू. देन वी कम टू द टेंडेंसीज रिलेटिंग टू, यू कैन से चाइल्ड इज द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन. बच्चा जो है केंद्र बिंदु है शिक्षा का. सबसे ज्यादा अहमियत किसी की अगर नेचुरलिस्ट के अनुसार किसी की है तो वो है चाइल्ड की. टीचर की इंपॉर्टेंस कम है. आपने देखा था कि आइडियलिज्म की फिलॉसफी में सबसे ज्यादा महत्ता किसकी थी, उसमें इंपॉर्टेंस थी आइडियलिज्म में टीचर की. लेकिन नेशनलिज्म की फिलॉसफी में सबसे ज्यादा महत्ता किसकी है, इट इज इन अकॉर्डेंस टू you can say the child. तो केंद्र बिंदु यहाँ पे child है. Then we come to the principles of education regarding to the nature of the child and the insignificant place for. इन्होंने जैसे आइडियलिज्म ने बुकिश नॉलेज को इंपॉर्टेंस दी है, नेशनलिज्म ने बुकिश नॉलेज को इग्नोर किया है, मना किया है उसका
तिरस्कार किया है। Now, individual alone is considered and valued, and the progressive and the dynamic ideology is maintained. The stress is on the freedom of the child. बच्चे के importance पर, freedom पर दिया गया है कि बच्चे की आजादी सब सर्वोपरि बताया है कि बच्चा आजाद रहे, स्वतंत्र रहे, बच्चे को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, उसको आगे बढ़ने देना चाहिए, तभी वो आगे कुछ हासिल कर सकता है जीवन में। Then we come to the aims of education according to self-expression, as they say. जो ये सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, जैसा कि आप देख रहे थे कि उसमें पास्ट पर ड्वेल किया था आइडियलिज्म में। किस चीज को आइडियलाइज करते हैं? पास्ट से चला रहा, पहले ऐसा था ऐसा ही रहेगा। लेकिन नेशनलिज्म कहता है कि अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, प्रिपेयर्डनेस, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, अपने आप को स्थापित करते रहने की लगातार एफर्ट करना, स्ट्रगल करना, निरंतर प्रयासशील रहना, एंड अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, अपने आप को अडेप्ट कर सकने की क्षमता। सो नेचुरल डेवलपमेंट हियर डील्स विद प्राकृतिक विकास जिसे कहते हैं। सो ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी and sensory trainings. These sensory trainings relate to the various autonomous development of an individual person. So redirection and sublimation of natural instincts किस प्रकार से करी जाती है? So it is relating to the curriculum. कैसा curriculum होना चाहिए? You can say naturalism की philosophy के तहत, तो ये उन्होंने कहा है कि naturalism की philosophy में ऐसा होना चाहिए कि वहां पे इंस्टिंक्ट्स का, एप्टीट्यूड का, टेंडेंसीज का, नेचर का, फॉर्म का एक मेन सोर्स मानकर करिकुलम बनाया जाए। कैसा करिकुलम हो? जिसमें बच्चे के नेचर को देखें, बच्चे की टेंडेंसीज को, एप्टीट्यूड को देखें और करिकुलम फ्रेम किया जाए। नाउ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स बताते हैं कि जो ऑक्यूपाई करते हुए कंपैरेटिव या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हुए मेन सब्जेक्ट्स हों, वो हो गेम्स, sports, physical science, physiology, health and culture, natural sciences and biological sciences. इन्होंने सेंसेस को गेटवे ऑफ नॉलेज कहा है, यहाँ तक कि नेगेटिव एजुकेशन की बात करी है, स्टडीइंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस या अनुभवों की बात करी है कि पास्ट के दम पर उनको यू कैन से फ्यूचर को बनाना है या इंपॉर्टेंस देनी है। So when they talk about discipline, they say emancipatory discipline की बात करी है, उन्होंने स्व अनुशासन की बात नहीं करी है। डिसिप्लिन क्यों? अगर आप जब तक डिसिप्लिन नहीं करेंगे तब तक आप स्ट्रिक्टनेस नहीं कर सकते, जब तक आप नेचर में, प्रकृति में डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बच्चा अपने आप सीखेगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ डिसिप्लिन बाय natural consequences, that is maximum freedom to the child. The teacher's role is subsidiary, whereas the child's position is central, and the nature is the supreme teacher. सबसे अहम, सबसे important teacher प्रकृति को बताया है। Teacher sets the stage for child and retires behind the curtain. So इनके अनुसार you can say that the child and the teacher changes. So the teacher is an observer, one who understands child psychology. ये इनका मानना था। Now the contributions that have been made regarding various aspects of learning in education, तो उसके तहत कहा गया है साइकोलॉजाइजिंग द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। जब साइकोलॉजाइजिंग की बात करी गई, किस तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में इसमें चेंजेस लाए जाएं। पेडोसेंट्रिक एजुकेशन, जिसमें जो बच्चा है वो केंद्रित रहे। लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से करना, सीखना, करके सीखना, ये एक माध्यम बताया है। फ्रीडम इन लर्निंग सिचुएशंस, सारी जगहों पे यदि कुछ इंपॉर्टेंस है तो वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता, आजादी, करके सीखना, स्वयं सीखना, बिना अनुशासन के, बिना कोई रोकथाम के। होलिस्टिक टेंडेंसी इन द करिकुलम ऑफर्ड। नाउ इनके हिसाब से you can say advocacy of residential schools and co-education, that is what they have talked about. Then we come to the role of
नेशनलिज्म के प्रति कौन सा क्रिटिसिज्म किस चीज के लिए कहा गया है, तो दैट इज रिलेटिंग टू, यू कैन से, it denies the existence of anything beyond nature, behind nature and other than nature. इनके अनुसार नेशनलिज्म को मानने वाले कहते हैं कि यदि कुछ महत्ता रखता है तो वो एग्जिस्टेंस सिर्फ नेचर है, तो लेकिन इसके लिए क्रिटिसाइज किया गया है कि केवल नेचर कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, और भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने मैन एंड एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंपॉर्टेंस नहीं दी है, तो उसमें इंपॉर्टेंस इन्होंने प्रकृति को दी है। तो जो जीवित है, जो व्यक्ति है, वो है मनुष्य। तो मनुष्य को छोड़कर हम किसी प्रकृति को केवल कैसे इंपॉर्टेंस दे सकते हैं? प्रकृति इंपॉर्टेंट हो सकती है, इनके अगेंस्ट कहा गया है, लेकिन केवल प्रकृति इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। द सुपीरियरिटी डज नॉट कंसिडर द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम, it is not helpful for total personality development. So, and the negative education that they talk about, which is fails to develop positive ideas and values in children. नेगेटिव एजुकेशन है, इनका कहना है अगर बच्चा गिर रहा है, गिरने दीजिए, करके सीखने दीजिए, गिर कर सीखने दीजिए, अपनी गलतियों के माध्यम से सीखने दीजिए. So this is what they talk about. That is the sensory organs are the gateway to knowledge. They are the main teaching requirements. इनके अनुसार जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी है, केवल प्रकृति इंपॉर्टेंट है. नेगेटिव एजुकेशन के अगेंस्ट बहुत लोगों ने आवाज उठाई है. सो डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस इज वेरी डेंजरस एज दे से, और इसको अधिक ज्यादा महत्ता देते हुए. Now we come to the philosophy of pragmatism and in education, as you would say, so which is an important aspect and given as by William James. Pragmatism is a temper of mind. It is also a theory of nature, of ideas and truth. And finally, it is a theory about reality. सत्य के लिए जिस पे importance दी गई है. So what William James here says is that pragmatism is a temper of mind. It is also a theory of the nature of ideas and truth. And finally, it is a theory about reality. जो कुछ हम देखते हैं, जिसमें परिवर्तन ला सकते हैं, जिसमें changes occur कर सकते हैं, the experiments can be conducted, and how those experiences help in changing of the person's behavior. तो जब शिक्षा के क्षेत्र में जब ये परिवर्तन लाए जाते हैं, तब हम उन परिवर्तनों को किस प्रकार से चेंजेस लाने में मदद करते हैं. Now, we can easily say that this relates to aspects of an. So we come to the different proponents that have talked about John Dewey, William James, and Kilpatrick. ये बहुत important philosophers हुए हैं जो कि pragmatism के तहत हैं, और Charles Sanders Peirce, he is known as the father of pragmatism. We come to the meaning of pragmatism, the Greek origin word that is action or activity. According to pragmatism, it is necessary to divert towards useful channel, and human minds are capable of fulfilling their minds on the basis of this truth. According to pragmatism, the education contains important practical knowledge and useful activities which make a self-dependent and useful member of the society. So these changes occur according to how it can be made useful member of society, how these changes can occur, and this is what they have talked about. So we talk about how they are in the making and how this changes the essence of this universe. That is what is important. ये परिवर्तन कैसे लेते हैं, परिवर्तन कैसे important है, और उसकी values कोई predetermined नहीं होती है, और इसमें ईश्वर पर विश्वास या spiritual values पर विश्वास नहीं रखा गया है. तो इनके बेसिक प्रिंसिपल्स डील करते हैं सोशल गुडनेस से, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस अलोन इज नॉट रियल. इनके नाम से जो ह्यूमन एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो इम्पोर्टेंट केवल नहीं होता है, एक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है थॉट से. जैसे आइडियलिज्म ने कहा था थॉट्स इंपॉर्टेंट है, आइडियाज इंपॉर्टेंट है, बट दे से दैट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज action. So aesthetic value is said to be viewed in terms of social goodness. So it should be concerned with present and truth is that which works. So educational philosophy pragmatism कहती है कि knowledge is not for the sake of knowledge but to help in the educand to meet his needs in a biological and social environment so as to achieve better personal and social adjustment. इनके प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं कि स्ट्रेस ऑन सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड एजुकेशन इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड साइंस. सोशल एफिशिएंसी इज द एम ऑफ एजुकेशन, emphasizing experimentation and practices in a natural setting. चाइल्ड को सेंट्रल माना गया है और लाइफ सिचुएशंस में एक्टिविटी हेल्प्स द मैन. एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स leading to problems have been said to be solving are the basis of learning. Sociability को emphasize किया है, progressive and dynamic nature बताया है, changeable ideology बताई है और freedom बच्चे की अहम बताई है. According to pragmatism, the aim of education is social efficiency. Educational aims change according to time and circumstances. The creation of new values is important and more education, continuous growth, social adjustment and harmonious development is said to be very important. The development of personality leading to various aspects, and the curriculum according to pragmatism is subjects based on utility. जो कुछ उपयोगी है प्रोजेक्ट फॉर्म में बेसिस को करिकुलम माना है, सोशल सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी है जिसमें मेन बॉडी और बाकी चीजें सब्सिडियरी बताई हैं. इसमें मेन सब्जेक्ट्स हैं हेल्थ, हाइजीन, फिजिकल साइंस, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, होम साइंस एंड एग्रीकल्चर. जो they are governed by 4 basic principles, that is principle of utility, principle of natural interest, principle of experience, curriculum and principle of integration, जैसे कि आप समझ रहे हैं. Then we come to the method of teaching according to them, that is learning through experience. जैसा कि आपको बताया, purposeful activity, correlation, integration, problem solving is encouraged, and the discipline according to them stresses on the social discipline. जो डिसिप्लिन है वो पर्पसफुल हो, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज हो और फ्रीडम फ्रेम में किया जाएगा. इसमें रोल ऑफ टीचर्स के तहत कहा है, द टीचर्स रोल इज लाइक फॉर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मोटिवेटर एंड द एक्सपेरिमेंटलिस्ट की तरह से, एक काउंसलर की तरह से जो गाइडेंस प्रोवाइड करे. टीचर जो है वो स्कोप डाले फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन सो दैट ही कैन लर्न टू क्रिएट न्यू सिचुएशंस. जहां तक कंट्रीब्यूशन की बात होती है, they say that which is fused both by psychological and sociological aspects of education, importance to child-centric education, social discipline, project method, and it develops problem-solving attitude. The flexible, broad-based curriculum and teacher as a guide and companion to pupils. That is principle of utility and social goodness, as they say. इसमें relevance बताई है emerging society में, emphasis on practical utility, emphasis on democratic values, emphasis on learning by doing, करके देखना, उपयोगी चीजों को करना, स्वतंत्रता के पूर्व करना, project method से करना, universal emphasis education पे देना, and pragmatism does not banish teachers. कहीं भी teachers की उपयोगिता को कम नहीं बताया है. Then they have talked about excuse me, the philosophy of realism and education. The doctrine of realism asserts that there is a world of things beyond and corresponding to obtain the object of our perception, जैसा कि इन्होंने बताया है. ये philosophy of realism in education states the doctrine of realism asserts that there is a world of things beyond correspondence, जिसमें अरिस्टोटल हुए हैं, जॉन लॉक, रूजल, मिल्टन, व्हाइटहेड, अरिस्टोटल ने जनरली रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ फादर ऑफ रियलिज्म.
रियलिज्म के लिए कहते हैं इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड res. Res means real, related to objects, and resolution here means it's a Greek word which means matter. Now this means that realism is matter plus thought. We get knowledge through senses, sensory organs. We can see physical visibility of an object which is real. इनके बेसिक प्रिंसिपल्स ये हैं कि फिजिकल वर्ल्ड इज रियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मैन, ऑब्जेक्ट्स रूल आवर परसेप्शन, nature's law are true and pre-existent. Sensory organs are gateways of knowledge. Truths are discovered, and through observation and experimentation, values are determined by one's own experiences. As objects have permanent properties, values also remain unchanged. Morals and standards are those which prove to be good for man. केवल वही वैल्यूज और मॉरल्स और स्टैंडर्ड्स को रखा जाता है जो मनुष्य के लिए, मानव के लिए हितकारी हैं. Then they have talked about natural laws and rules. इनके अनुसार प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं कि एजुकेशन इज बेस्ड ऑन साइंस ओनली. इन्होंने आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी है. दे हैव एम्फसाइज्ड ऑन बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंटेशन. Child and his presence our life are the centers of education. It opposes book knowledge, book learning, and both the individual and the society are valued. दोनों की इंपॉर्टेंस समाज में, समाज की और इंडिविजुअल व्यक्ति की, दोनों की है. It is liable to change according to a change in life, as they say. Aims of education के अनुसार they equip the individual with skills and knowledge to matter the physical environment. That is adjustment with realities of the world, and adult approved behavior promotes rational thinking, as they say. इनका करिकुलम कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन कोर्सेज में हो मगर लाइफ से रिलेटेड हो. प्रेफरेंस स्टडी में साइंस को दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, प्लेसेस में ट्रैवल करना, फील्ड ट्रिप्स प्रोवाइड करना, सब्जेक्ट्स जो कि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो करिकुलम में इंक्लूड किए जाएं. मेन सब्जेक्ट्स नेचुरल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस या हेल्थ, कल्चर से रिलेटेड, फिजिकल एक्सरसाइजेस से रिलेटेड हो, मैथ्स हो, ज्योग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. दे शुड ऑल प्रूव टू बी फ्रूटफुल, एज दे से. Then they have talked about methods of training which should be related to you can say subjective and objective methods of teaching. और इनके तहत इसमें कहा है कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हो जिसमें एक्सप्लोरेशन हो, एक्सपेरिमेंटेशन हो, सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिकल वर्क हो, इंडक्टिव मेथड हो, कोरिलेशन मेथड हो. सो कोरिलेट करना एक विषय को दूसरे विषय से, करके सीखना, सेल्फ स्टडी के माध्यम से सीखना, प्रैक्टिकल वर्क करके सीखना, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, एक्सप्लोर करना, field trips करना, observe करना. These are the various methods that they have talked about. Role of teacher के तहत इसमें कहा गया है कि teacher's role is supreme because he or she brings the child to learn with external realities of life and imparts scientific knowledge to the child as an easy and effective way and helps for the objective learning of pupil. Is a man with scientific temper. इसको टीचर को एक साइंटिफिक टेम्पर का, साइंटिफिक इंटरेस्ट रखते हुए उसको ऑब्जेक्टिव लर्निंग के तहत लिया है. स्टूडेंट की डिसिप्लिन में कहा है कि डिसिप्लिन बाय लिमिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, मोरालिटी इज टॉट बाय कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, और इमेंसिपेटरी डिसिप्लिन को यहाँ इंपॉर्टेंस दी है. सो वी कम टू द पॉइंट दैट व्हाई आर दीज एस्पेक्ट्स टॉक्ड अबाउट इन दिस टर्म. सो आज के लिए आपके क्लास में इतना सफिशिएंट है. आई जस्ट वांट टू लेट यू नो that these concepts that I have talked to you, we have already discussed in the other earlier classes where I talked to you about difference between comparative of Eastern and Western school of philosophy and different philosophies. बाकी philosophers को discuss करते वक्त भी हम लोगों ने कई सारे aspects discuss किए हैं. आज के class से I hope you must have got many concepts clearer and must have followed in a much better manner.
So dear students, I hope that this class in the paper of B.Ed 2102, that is the unit 4, you have followed, and we shall soon be studying in the coming classes about various Western philosophers. Thank you, students. Thank you all.